السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اس کانفرنس کا دوسرا سیشن، دوسری مجلس اللہ کے فضل سے عصر کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کچھ باتیں ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے کچھ رکھی تھیں، کچھ ادھوری باتیں میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مدت میں جو مجھے یہ ٹائم ملا ہوا ہے، میں اس میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں مبتلا فرماتا ہے اور کیوں وہ آزمائش کے اس مرحلے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے تقریباً 5 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ چھٹی بات مجھے یہ بتلانا تھی اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص طور سے بڑے بڑے لوگوں کو، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، اور اسی طرح اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس ابتلا کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہماری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو صالحین اور بڑے لوگ ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی نگاہیں جا کے ٹکتی ہیں، انہیں اللہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں مبتلا کرتا ہے ان کو؟ اس کے ذریعے سے دراصل جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوسرے بندوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ ساری مخلوق، یہ ساری بڑی بڑی شخصیات، یہ انبیاء، یہ رسل، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ تمہارے نزدیک خواہ کتنے ہی بلند و بالا مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی مقام ان کا کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ کسی چیز کے مالک و مختار، توجہ میری طرف دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اس آمد کا، اس مجلس کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو پھر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں اور آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ ذہن، کچھ فکر، کچھ عقیدہ، کچھ دین کی باتیں لے کے جائیں، ورنہ آمدن اور نشستن برخاستن، آنا جانا بیٹھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مکمل توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی اونچی شخصیات کو، نبیوں کو، رسولوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے، یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں، اور یقیناً یہ بلند و بالا مقام پر فائز بھی ہیں ہمارے یہاں، اور ان کا مقام اور ان کی عزت ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ تم سوچو کہ یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کسی چیز کے مالک و مختار۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر یہ کسی چیز کے مالک و مختار ہوتے، اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا، اگر یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہوتے، یہ جو چاہتے کر دیتے، اور جو آپ ان سے طلب کرتے وہ انہیں آپ کو یہ دے دیتے، تو پھر یہ خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کیوں نہیں ٹال سکتے ہیں؟ یہ کیوں اب خود ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں؟ کیوں یہ مصیبتوں سے دوچار ہیں؟ کیوں یہ لوگ پریشان حال ہیں؟ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمومی طور پر بندوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ مالک و مختار صرف اللہ عز و جل ہے، مختار کائنات صرف اللہ عز و جل ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کتنی بھی بلندی پر فائز کیوں نہ ہوں، سب اس کے در کے گداں ہیں، سب محتاج ہیں، سب مجبور ہیں، سب اس کے دروازے کے بھکاری ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھکاری اور سب اسی کے مغتا ہیں۔ اور اگر یہ ان چیزوں کے مالک ہوتے تو اپنے سے یہ دور کر لیتے۔ چنانچہ اے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقام دینے والوں، اے عیسائیوں، اے کرسچنوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر فائز سمجھنے والوں، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والوں، اے کرسچنوں سنو،
آخر عیسیٰ کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، عیسیٰ بھی آزمائش سے دو چار ہوئے، اور تم اپنی چشم عبرت سے دیکھو، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انہیں سولی دی گئی، ایک خدا اتنا مجبور کہ اس کے ماننے والے اسے سولی پہ لٹکائیں اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، سولی سے بچ نہ سکے، اتنا مجبور محض ہے جس کو تم پکار رہے ہو یا جس کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ تم سوچو ذرا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے امتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہمارے بندو، سنو، اس کائنات میں تنہ تنہا میں ہوں۔ اگر رسول اکرم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو غزوہ احد میں ان کے سامنے 70 صحابہ کو تہہ تیغ نہ کیا جاتا۔ غزوہ احد میں اگر ان کے ہاتھوں میں نفع پہنچانا ہوتا تو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے یہ دیکھ سکتے؟ نہ دیکھتے، ان کے کلیجوں کو چباتے ہوئے نہ دیکھتے۔ اگر یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو وہ پتھر جو ابن قمیہ نے مارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، اور وہ پتھر سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون چکا ہوا، اور آپ کے چہرے کے اندر وہ خود کے کڑیاں داخل ہوئیں اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو ہرگز یہ مشقتیں، یہ ایذائیں وہ برداشت نہ کرتے، بلکہ پتھر آنے سے پہلے ہی ہاتھ پھیر دیتے تو وہ پتھر۔ آخر تمہارے بزرگ تو اتنے طاقتور ہیں کہ اجمیر کا جادوگر خواجہ اجمیری کے اوپر پہاڑ لا کر کے ڈھکیلے تو خواجہ اجمیری وضو بناتے ہوئے پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، پہاڑ رک جائے۔ تمہارے بنائے ہوئے ولی اتنے طاقتور، جو اللہ کا رسول، جو اللہ کا نبی، وہ ایک پتھر نہ ہٹا سکے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ آخر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ سارا کا سارا کاروبار اور ساری کی ساری ملکیت اور ساری کی ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے نبی سے، خود اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان دلوایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ فرما دو میں نفع نقصان کا تمہارے لیے کوئی مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی آپ لوگوں کے سامنے کہہ دو اگر مجھے اللہ پناہ نہ دے تو کائنات میں مجھے کوئی پناہ دے سکتا؟ میری پناہ گاہ کون ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 21۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو آپ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے لوگو میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں بھلا تمہارے لیے کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے ان باتوں کے جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی ایذا نہ پہنچتی، کوئی ایذا۔ چچا حمزہ ابن عبد المطلب کا کلیجہ نہ پھاڑا جاتا، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید نہ کیے جاتے، پتھر ہمارے اوپر نہ لگتے، کفار مکہ کی اجھڑیاں ہمارے گردنوں کے اوپر نہ آتی، کفار مکہ ہمارے گلے نہ گھونٹتے، اور بلال حبشی کو گردن میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں نہ گھسیٹا جاتا، خبیب کو سولیوں کے اوپر نہ چڑھایا جاتا، خباب ابن ارد کو سلگتے ہوئے انگاروں پہ نہ سلایا جاتا، ابو بکر کو زیزہ نہ پہنچائی جاتی، عثمان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئیں کا عذاب نہ دیا جاتا۔ اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں یہ تمام سب کیا کرتا؟ اماں سمیہ کی شرمگاہ نہ پھاڑی جاتی، ان کے پیٹ کو نہ چیرا جاتا، عمار کو ایذا نہ پہنچائی جاتی، یاسر کو شہید نہ کی۔ غرض یہ تمام سب ایک المناک داستان ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں اگر غیب جانتا، مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر زیادہ سے زیادہ سمیٹتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جاتی۔ لیکن اللہ اکبر، اور اے لوگوں سنو،
अगर हजरत नूह के हाथ में नफा कुछ होता और हजरत नूह जैसा उलुल अज़्म नबी भी पहला रसूल इस कायनात में मबूस होता है, अगर उसके हाथ में भी नफा नुकसान कुछ होता और वो मालिक होते तो अल्लाह तबारक तआला से वो यूं दुआ न करते, क़ाल रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ऐ अल्लाह मैं इन गुंडों के मुकाबले में मगलूब हो चुका हूँ, ये कुफ़ार और मुश्रिकीन के मुकाबले में ऐ पाक परवरदिगार मैं मगलूब हूँ, फ़ंतसिर मेरी मदद फरमा मौला, मेरी मदद कौन करे मदद, बोलो अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हाथ में होता कुछ तो हजरत लूत ये ना कहते लौ कान अली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद, हाय अफसोस काश मेरे पास जुरात होती, कुव्वत होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ते कि मेरे मेहमानों के साथ तुम बेइज्जती करने के ऊपर तुले हुए हो, या मेरे पास कोई मजबूत मेरा कोई वो होता तुम आज मुझे ये मुंह ना देखने पड़ते। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये इब्तिला और आजमाइश जो बड़े बड़ों पे आती है, सूरज के ऊपर भी आती है, चाँद के ऊपर भी आजमाइशें आती हैं। ये सूरज ग्रहण, ये चाँद ग्रहण, ये एक जहन देना है और दुनिया के सूरज के पुजारियों को, चाँद के पुजारियों को ये बतलाना है कि ये कितनी बुलंदी पे क्यों ना रोशन हो। अल्लाह की गिरफ्त से ये भी बच नहीं सकते। अल्लाह जब चाहे इन्हें बेनूर कर सकता है, जब चाहे इनको रोशन करे और जब चाहे इनकी रोशनियों को छीन ले। मेरे अजीजों, ये तमाम सब मसलहतें होती हैं इन इब्तिला और आजमाइशों की। और सातवीं चीज़, कभी कभी ये इब्तिला और आजमाइशें यूँ आती हैं कि बंदे को इबरत सिखलाने के लिए, नसीहत देने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर, जो कुछ भी बलाएं तुम्हें मिलती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं। इसलिए ये इबरत हासिल करो। और ये एक मोमिन का शेवा है कि उसे ठोकर भी लगती है, नुकसान भी होता है, मुसीबत परेशानी जो भी आती है, उस परेशानी में वो जजा फजा नहीं करता, बल्कि फौरन अपने गुनाहों का मुताला करना शुरू करता है। वो ये सोचता है आज जरूर मुझसे कहीं ना कहीं नक्स हुआ है। हज़रत अबू सईद खुदरी गालिबन बयान फरमाते हैं कि एक सहरा में उतरा, मुझे बिच्छू ने डंक मार दिया। मैं सोचने लगा कि ये कभी तो मुझे बिच्छू ने डंक नहीं मारा, आज मुझे बिच्छू ने क्यों डंक मारा। तो कहते हैं कि जब मैंने गौर किया तो मुझे अपनी एक कमी नजर आई, और वो कमी ये थी कि जब मैं सहरा में उतरा तो अल्लाह के नबी की मैं वो दुआ भूल गया, मैंने नहीं पढ़ी थी वो दुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मकाम में उतरो तो कह लिया करो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये कलिमा कहना मैं भूल गया था, आज मैं भूला तो बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। जो कुछ भी मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाइयां होती हैं। ऐ परेशान हाल मुसलमानों, ऐ कल्को इस्तराब और बेचैनी की जिंदगियां गुजारने वाले दुनिया के लोगों, ऐ आलम इस्लाम में बेकरारी महसूस करने वाले मुसलमानों, अपने अपने अकीदों, अपने अपने ईमान, अपने अपने अमल के ऊपर गौर करो। रब्बे ज़ुलजलाल की कसम है तुम्हें इन परेशानियों का सबब खुद पता चल जाएगा कि ये परेशानियां क्यों हैं। अल्लाह ने नहीं, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं फरमाता है, तुम अपने नफ्सों के ऊपर खुद जुल्म करते हो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदि नास, लोगों की अपने हाथों की कमाइयों की वजह से ये फितना फसाद दुनिया के अंदर बपा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, तुम्हें जब तक खुद अपने हालत के बदलने का ख्याल नहीं होगा अल्लाह तुम्हारी हालतों को तब्दील नहीं करेगा। इसलिए खुद अपनी हालतों की तब्दीली शिकवा न करो, गिला न करो। गिला करना है तो अल्लाह वाले से करो, और अपने अमाल की बदअमालियों के ऊपर गौर करो, अपनी बदअकीदगियों के ऊपर गौर करो कि तुम्हारे दरमियान कितना फसाद और कितना फितना अकीदों का और इसी तरह बदअमालियों का पड़ा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं खुद गौर करते किस किस तरह के फितने हमारे दरमियान। मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हकीकी तौर पर मुसलमान हैं? क्या हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? क्या हम ये दावा करते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक तआला जानता है कि तुम में कौन मुसलमान और कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक। आज कसरत मुनाफिकत की है, मुनाफिकत कसीर तादाद में मुनाफिकत हो रही है हमारे दरमियान, मुनाफिक मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां बतलाई कि इज़ा हद्दसा कदब, जब वो बात करे तो झूठ बोले। आज मुसलमान बात बात पे किस बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ थोक के भाव बोलता है। और इस उम्मत के बुरे उलमा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा करते हैं। वइज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने वादे तुम पूरे करते हो, कितने वादे पूरे करते हो? वइज़ा तुमिना खाना, अमानत दी जाए तो खयानत करे। कितनी खयानतें आज मुसलमानों में हैं। आज जितने केसेस
अदालतों के अंदर मुसलमानों के मौजूद हैं, गैर कौमों के मौजूद नहीं हैं। उसने भाई को मार दिया, उसने गसब कर लिया, उसने चोरी कर ली, उसने बीवी भगा ली, उसने लड़की भगा ली, उसकी बेटी वहाँ भाग गई। कितनी अमानतें हैं जो तुम ज़ाया कर ख़त्म कर रहे हो। वैज़ा, और एक रिवायत में है कि वैज़ा ख़ासम फजरा, जब वो झगड़ा करे तो गाली बके। माँ बहन बेटी एक ज़ुबान से जनाब अली किसी को नाराज़ करके देख ले, शुरू सुन लें आप। ये सब अलामतें निफाक की, ये निफाक की अलामतें हमारे अंदर मौजूद हैं। हम मुनाफिक बन चुके हैं, और मुनाफिक ये कुफार और मुश्किन से भी बदतर जगहों में रहेंगे। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन को जगह मिलेगी। और ये क्यों पैदा हुआ निफाक? निफाक क्यों आया पता है तुम्हें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सारे असबाब हैं लेकिन एक सबब मैं बतलाऊंगा बस, और तुमने उसे मामूली समझ लिया है। और ये बड़ी बर्बादी की बात होती है कि जब कोई बीमार बीमारी को बीमारी न समझे। एक मरीज से कहा जाए कि ये बीमारी है, इस बीमारी की वजह से तू बीमार है, वो कहे नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, उससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी थी कि इन्नल गिना युंबितुन निफाक, गाने दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं। गाने और बजाने दिलों के अंदर क्या पैदा करते हैं? बोलो, ये किसकी बात है? हकीमुल उम्मत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। गाने बजाने दिलों में निफाक पैदा करते हैं, उसी तरह से जिस तरह से पानी मिट्टियों में मिलकर सब्जे उगाता है, सब्जे पैदा करता है, सब्जे उगते हैं, घास उगते हैं, इसी तरह से गाने बजाने दिलों में निफाक पैदा करते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उस हकीमुल उम्मत की ये बात है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज इसी निफाक की वजह से, इस बीमारी की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, और उसके तुम आदी बन चुके हो, और इतने आदी बन चुके हो कि बेहिस हो चुके हो। तुम्हें एहसास भी नहीं है, तुम्हें अपने नफ्सों के मुराकबा करने की और अपने नफ्सों का मुहासबा करने का भी वक्त नहीं मिलता है। कामों से फुर्सत मिलती है तुम्हें तो अपने कमरों में जाते हो तो इन कजड़ियों खुसरियों की नाच और गाने और बजाने देखते देखते तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, तुम सो जाते हो। अल्लाह न करे उसी हालत में अगर तुम्हारी मौत आ गई, तुम्हारा हश्र किसके साथ होगा? अल-मर्उ मअ मन हब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का हश्र उसके अपने दोस्त के साथ होता है जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। भला बतलाओ, इन डोमनियों और इन भांडों और इन नट्टों के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन हो, ये तुम्हें गवारा हो सकता है मुसलमानों? बोलो। फिर आज तुम्हारी जेबों में गाने भरे पड़े हैं, घर नहीं। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था एक ज़माना आएगा इसका इंतशार आम होगा, शराब पिए जाएंगे, कैनात बजेंगे, म्यूजिकें बजेंगी, गाने बजेंगे, घर घर में रक्स व सरूद होगा। आज तुम्हारी जेबों में तुमने जो 2 टके के ये जनाब अली मोबाइल लिए हैं, जलीलों ने यहाँ तक तुमको गुमराह किया है कि तुम्हें टेलीफोन के घंटियों को समझने के बजाय तुमने इसके अंदर अपने अपने मनपसंद मुल्कों के गाने तराने डलवाए हैं ताकि जब वो आवाज आए तो तुम्हें वो गाने की सीनरियां याद आएं। लानत न हो इसी उम्मत के ऊपर और इस लोगों के ऊपर अल्लाह की। तुम कहो कि हमारे पिस रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तुम्हें अपनी हालत बदलने का ख्याल ही नहीं है, न खुद बदलते हो, तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम्हें कैसे आएंगी? तुम कैसे फतह याब हो? जो इलाके हमारे आबा वजदाद ने फतह किए थे खून और पसीने लगा लगा करके, आज तुम उन इलाकों को भी तुम्हारे हाथों से चले गए, जा रहे हैं और वही लोग उन इलाकों के ऊपर, स्पेन, हिस्पानिया, फ्रांस की साहल तक और यूरोप की वादियों तक नारे तकबीर की आवाजें गूंजी थी। मुसलमानों ने तौहीद के झंडे बुलंद किए थे, वो इलाके रहे तुम्हारे हाथ में। बोलो, जब मोहम्मद और गुल मोहम्मद और फलाने मोहम्मद शाह जैसे रंगीले बादशाह पैदा होंगे और गाने बजाने वाले रंडियों तवाइफों को मुजरे सुनने वाले होंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर 10 साल हुकूमत बरकरार रहेगी तुम्हारी। ऐसे बदबातिल लोगों के हाथों में अल्लाह क्यों हुकूमत देने लगा, जिनको अल्लाह ने यह फरमाया कि अगर हम उन्हें हुकूमत देते हैं तो वो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं, अल्लाह का दीन कायम करते हैं। जो अल्लाह के दीन को ढा रहे हों उन्हें अल्लाह कभी हुकूमत दे सकता? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के लिए रो, बदकिस्मती पर, अपने बदआमालियों पर रो। अल्लाह की रहमत का नज़ारा देखना है, जिब्रील और फरिश्तों की आमद देखनी है,
तो सच्चे पक्के मोमिन बनो, सच्चे पक्के मोमिन बनो, और ये तमाम सब चीज़ों से तौबा करो। ये लानत गाने बजाने की, बोलो तौबा करोगे कि नहीं? ये तौबा करो इससे। मोबाइलों के अंदर ये जो म्यूज़िक हैं, इसको टेलीफोन सिर्फ समझने वाला बनाओ। आखिर अजान की आवाज़ें भी कंप्यूटर से भरी जा सकती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? कुरान की तिलावतें भी तुम डाल सकते हो, क्यों नहीं डालते? और फिर कहते हो कि हम कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, और आजमाइशों में, इब्तला में मुब्तला है। अरे तुमने, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे हाथों की कमाइयाँ हैं। तुम्हारे तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, तिलकल अय्याम। अगर बदर में हमने तुम्हारी मदद की और कुफार को शिकस्त हुई, तो ऐ ग़ज़वे उहुद के लोगों, तुमने पहले उन्हें ज़ख्मी किया है, आज तुम्हें यही ज़ख्म मिल रहे हैं। क्यों? तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की परवाह न की, जिसकी वजह से तुम्हें आज तुमने पूरे दीन को, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, एक मुश्त तुमने इनकार कर दिया है। बिल्कुल दीन का कहीं पता लता नहीं है, तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। आखिर तुम्हारी आंखों से यही कुरान जब पढ़ा जाता था, कुफ्फार तक रो देते थे, लेकिन आज हमारी तुम्हारी आंखों से कुरान सुन करके आंसू नहीं निकलते। क्यों नहीं रोते हो? क्या ये समझते हो कि तुम गुनहगार नहीं हो? क्या ये समझते हो कि अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तुम्हारे पर? क्या ये समझते हो कि तुम बख्श दिए जाओगे? क्यों? आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस से गुजरे, सहाबा कराम हंस रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी जोर से मत हंसा करो, जो मैं जानता हूं अगर मैं बता दूं, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरन, तो हंसियां तुम्हारे होठों से गायब हो जाएंगी, आंखों से अश्क रवा हो जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते, आंखें आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो जाती रोते रोते। कौन से लोग थे ये? वो लोग थे जिन्हें जन्नत की खुशखबरियां दुनिया में मिल गई थी, जिनसे फरिश्ते हया करते हैं। लेकिन आज तुम कभी नहीं रोते हो, तुम्हें रुलाई नहीं आती अल्लाह की बातों पर, रसूल की बातों पर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता। क्यों नहीं पसीजता? क्यों? उसकी वजह यह है कि तुम गानों के रसिया हो गए हो। रब्बे काबा की कसम है, यही वजह है। ये गाने निफाक पैदा करते हैं, ये बजाने निफाक पैदा करते हैं। तुम अमली निफाक के शिकार हो चुके हो। ये छोड़ दोगे, तुम्हारे दिल पसीजेगा। छोड़ दो। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे इंशाअल्लाह। जिस दिन छोड़ोगे और तुम्हारे दिल अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की आयतें जाएंगी। ये एक डॉक्टर अगर ये कहे कि बेटा ये खाओगे तो तुम इस चीज़ के मरीज हो जाओगे, सिगरेट पियोगे कैंसर की बीमारी लगेगी, टीबी के मरीज हो जाओगे, अब बताओ टीबी की बीमारी तो आने ही वाली है। डॉक्टर अपने नसीहतों में झूठा तो नहीं है। यकीनन सिगरेट पीने से बीमारी आएगी, यकीनन सिगरेट पीने से दिल स्याह होगा, कटेगा, कलेजा दागदार हो जाएगा और तुम मरीज हो जाओगे कैंसर के, जिसका कोई इलाज नहीं है मौत के सिवा। डॉक्टर बतलाता है, तो फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो पी रहा है तो गलती उसकी। इसी तरह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाने बजाने दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं। कितनी सीधी सी बात है, कितनी सीधी सी बात है। आज ये सबब है, निफाक का सबब क्या है? ये है इसकी जड़ काटो। जिस तरह शिर्क की जड़ें काटनी है ना, इसी तरह इस अमली निफाक की, जो अमली एतकादी निफाक है उसे भी खत्म करो। और जो सबब बन रहा है तुम्हारी बर्बादी का, अमली निफाक का, कसावत कल्बी का, दिलों के सख्त होने, इसकी भी जड़ें काटो। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे, इंशाअल्लाह। ये वादा करो। इस आज जुमा का दिन है, असर के बाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और मुहद्दिसीन ये कहते हैं हदीस की जो नबी के सामने के बारे में, कि जब जुमे के दिन एक साथ ऐसी है जिसमें अल्लाह से जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। आओ असर के बाद ये तौबा करें, ए पाक परवरदिगार अब हमारे कानों में ये दीन की, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ के सिवा और कोई गाने बजाने की आवाज़ कसदन दाखिल नहीं हो सकती है इंशाअल्लाह तबारक तआला। और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तौबा करें हम कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम बुराइयों से अल्लाह हमें बचाए, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को रिफत और बुलंदी अता फरमाए। हमारे माँ बाप को जन्नत में जगह अता फरमाए, हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। हम सबको गुनाहों से अल्लाह तबारक तआला पाको साफ फरमाए। कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, सबसे अल्लाह तबारक तआला हमारे नामे अमाल को धुल दे मौला।
اور اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائیوں میں جو گمراہ بدعقیدہ ہیں پاک پروردگار انہیں صراط مستقیم عطا فرما دے مولا, انہیں صحیح راہ عطا فرما دے مولا. دنیا کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ توحید اور سنت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جمع فرما دے مولا. آمین یا رب العالمین. دعا بھولا مت کرو. یہ دعائیں ابتلا اور آزمائش کے لیے, یہ دعا اللہ رب العزت جو میں نے بتایا ہے اس لیے بھی ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ کو پکارو, تم اللہ کو مت بھولو, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. احفظ اللہ یحفظک, نبی فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ کو یاد رکھو گے اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے. جب اللہ کو یاد کرنے والے ہمیشہ کسی مصیبت پہ پھنستے ہیں, جب آواز عرش تک پہنچتی ہے مارے الہ میری مدد فرما, تو عرش فرشتے کہتے ہیں اے بارے الہ یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے, یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے. اللہ فرماتا ہاں یہ وہ میرا بندہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اے میرے بندو, اے میرے فرشتوں, میں اسے کیسے اس مصیبت میں بھول جاؤں گا, میں اس کی مصیبتوں کو آسان کروں گا. اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی آواز تو اجنبی سی لگتی ہے. ہاں اللہ بھی جیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو اللہ بھی تمہیں بھلا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی آزمائش میں گزر رہی ہے. ہر موڑ, ہر ڈگر ہم آزمائشوں میں گزر رہے ہیں. ہماری پوری زندگی ہم آزمائشوں میں ہیں, مگر بڑے ہی کم ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے, اور کم ہی وہ لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعی وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میرے عزیزو مصیبت یا بیماری, تنگی اور پریشانی ہی ابتلا اور آزمائش ہے. نہیں, ابتلا اور آزمائش کے اور بھی صورتیں ہیں. یہ فکر اور یہ خیال شرعی طور پر غلط ہے. مال کی فراوانی اگر تمہارے پاس ہے یہ بھی آزمائش ہے تمہارے لیے. مال کی فراوانی زیادتی بھی آزمائش ہے. اگر صحت و تندرستی اچھی ہے یہ بھی آزمائش ہے. ہدایت کے راستے اگر تمہیں میسر ہیں اور تم صراط مستقیم پہ چل رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے. مشغولیات ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. اور اگر فرصت کے اوقات تمہیں میسر ہیں, ٹائم موجود ہے, یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ ان اوقات کو تم کہاں صرف کر رہے ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے, 4 چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اب تمہاری عمر کے بارے میں, تمہاری دولت کے بارے میں, تمہاری عمر اور تمہاری دولت کے بارے میں, تمہارے علم کے بارے میں, تمہارے اعمال کیسے کیسے تم نے کیے ہیں. گویا یوں کہہ لیں کہ ایک مومن کی ساری زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے. اور رب نے صحیح فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, موت بھی آزمائش ہے, زندگی بھی آزمائش ہے. کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 سے کہ اے لوگو ہم تمہیں خیر دے کر کے, عیش و عشرت دے کر کے بھی آزماتے ہیں, اور تمہیں شر بھی مبتلا کر کے اس سے بھی تمہیں ہم آزماتے ہیں, اور آخر ہمارے پاس پلٹ کر کے آنا ہے تمہیں. اللہ نے اور اللہ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. خیر کی ابتلا حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت آ گیا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی, اے لوگو سنو میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے اشارے پر یہ آیا ہے. ھذا من فضل ربی, میرے رب کے فضل سے یہ تخت یہاں پہنچا ہے. اور اے آصف برخیا, اللہ نے تجھے اگر یہ مقام اور ولایت عطا فرمائی ہے کہ تو پلک جھپکتے میں تو اس تخت کو یہاں لا سکے اللہ کے حکم سے, تو اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے, بلکہ یہ کس کے فضل سے ہوا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. ہاں, اور کیوں ہوا ہے؟ لیبلونی, نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر, کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کا نافرمان بندہ, نہ شکرا ہوں. اللہ اکبر. من شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اللہ حضرت سلیمان نے کہا, اللہ نے اس کو نوٹ کیا کہ جو شکر کرے گا اللہ کا اس کو اس کا فائدہ ملے گا, اور جو انکار کرے گا تو میرا رب ایسے آدمی سے بے پرواہ ہے. مجھے رب کو اس کے شکر کی ضرورت ہے. ہاں, کتنے ناشکرے ہیں اللہ کا, کھا رہے ہیں, غرا رہے ہیں. تم ہو بھی مسلمان, لیکن تم میں بھی کتنے ناشکرے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اللہ مال کے ذریعے آزماتا ہے, اور اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا ہے. اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان
फ़कान मिनल गावीन, अल्लाह ने फरमाया कि उस आदमी का वाक़या है नबी लोगों के ऊपर बयान करो जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी, तो उन निशानियों को फेंक कर आयतों को, इसको इल्म दिया था, तकवा दिया था, सब कुछ दिया था, उसने क्या किया, ये सब पीछे डाल करके पीछे डाल दिया, भुला दिया, तो शैतान उसके पीछे लग गया। फ़कान मिनल गावीन, तो गुमराह हो गया। शैतान आलिम था, वो आदमी कौन था जिसका किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया, वो आलिम था, बहुत बड़ा इल्म वाला था, अल्लाह ने उसे अपनी निशानियां, अपनी आयतें अता फरमाई थी, लेकिन उसने परवाह न की, शैतान उसके पीछे लगा और वो गुमराह हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अल्लाह फरमाता है अगर हम चाहते तो उस आदमी को बुलंद मकाम अता फरमाता मैं, वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्द, लेकिन वो खुद ज़िल्लत व पस्ती इख्तियार किया उसने, वत्तबअ हवाहु, और अपने नफ्स की उसने पैरवी करने लगा। फ़मसलुहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, उसकी मिसाल ऐसे आलिम की मिसाल जो इल्म को हासिल करके और उसके मुताबिक अपने ईमान और अपने अकीदे और अमल को न रखे, झूठ बोले और उसको पसे पुश डाले, अल्लाह फरमाता उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जिस कुत्ते के ऊपर बोझ रख दो, जब भी जुबान लटका के हाँफता है, बैठा रहे बगैर किसी बोझ के, फिर भी जुबान लटका के, उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है। अल्लाह ने भी बड़ी कुत्तों की मिसाल बड़े अच्छे ढंग से बयान फरमाई। हम कहीं कहीं अपनी तकरीरों में कुत्तों की मिसाल देते हैं तो कहते हैं रब्बानी साहब ये कुत्ते कुत्ते क्यों तकरीरों में कहते, सुनो अल्लाह भी वो कुत्तों ही की मिसाल, कुत्तों को कुत्तों ही की मिसाल देनी चाहिए। जैसा अल्लाह ऐसे जाहिल बेइल्म बेअमल ऐसे लोगों की मिसाल ऐसे ही है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मसलुल कौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये मिसाल मैंने जो कुत्तों की दी है, अल्लाह फरमाता है ये उस कौम की मिसाल है जो हमारी आयतों को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बावजूद भी उसका क्या करते हैं, इनकार करते हैं। फ़क़्सुल क़सस, ए नबी फिर इनको ऊपर किस्सों को बयान करो, लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि लोग गौर करें, सोचें, फिक्र करें। सूरह अल आराफ आयत नंबर 176, यही हाल उलमा यहूद का था, उलमा बनी इसराइल का था कि वो लोगों की सब कुछ जानते थे, यारिफून कमा यारिफून अबनाअहुम, हक को, दीन को, रसूल को ऐसे जानते थे जैसे अपनी औलाद को, लेकिन इनकार करते थे, अमल नहीं करते थे, झूठलाते थे, सब कुछ करते थे तासुब से। आज बैन ही क़यामत तक ये आयत करीमा है और आज भी ऐसे बुरे उलमा नबी की उस उम्मत में मौजूद हैं जो हक़ाइक़ को जानते हैं, समझते हैं, कुरान और सुन्नत और अल्लाह के नबी की आयतों को जानते हैं, उसके बावजूद भी अपने नफ्स की पैरवी करके वो इस कुत्ते की मानिंद हैं जो बैठा रहे, जब भी जुबान निकाले रहे और उसके ऊपर बोझ हो, जब भी जुबान उसकी निकलती रहती है। हज़रत अबू हुरैरा और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिन फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ा अल्लाह ताला व मा अलैहि ख़तिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन हो, मोमिना हो, मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर बलाएं, आजमाइशें मुसलसल आती रहती हैं, उसके माल को लेकर, उसके औलाद को छीन कर या और किसी चीज़ में अल्लाह तबारक ताला उसे आजमाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है और इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करता है कि वो गुनाहों से पाक हो, साफ़ हो जाता है। तो इस हदीस पाक से हमें यह मालूम हुआ कि अगर मुसीबतें आती हैं, बलाएं आती हैं और आपका ईमान सच्चा है और वाक़तन आपने गौर किया है कि हमने कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं किया, ये समझ लो आपकी रिफ़त बुलंदी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ की है। और इस सिलसिले में बेशुमार कुरान करीम के अंदर वाक़यात, आजमाइशों के अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं, इब्तला के। मेरे भाइयों, नबियों के वाक़यात, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनो, अल्लाह ने मछली के पेट में आजमाया, वहाँ गए 3 तारीकियों के पर्दों में, कितने कौम से भागे और गए समंदर में फेंक दिए गए। फेंकवाया किसने? अल्लाह ने। कहां भाग के जाओगे तुम अल्लाह ताला से? लेकिन चूंकि महबूब थे, नबी थे, अल्लाह को यह पसंद नहीं था जाया हो, अल्लाह ने हिफाजत के लिए मछली का घर बना दिया, उनकी मछली के पेट को उनके लिए महल बना दिया, मछली साथ साथ थी। हजरत यूनुस समंदर में गिरे, हजरत यूनुस समंदर में, और क्यों फेंके गए? बोलो क्यों फेंके गए? कौम को छोड़कर भागे थे तो कश्ती में से क्यों निकाले गए? सोचे थे कश्ती से पार हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, है कि नहीं? कश्ती में क्यों फेंके गए? कश्ती से क्यों फेंके गए? कश्ती भंवर में फंसी तो किसी ने कहा कि इस पे बोझ ज्यादा है, किसी न किसी को कम करो, नहीं तो ये कश्ती डूब जाएगी और सारे के सारे डूबेंगे। कुरान डाला गया, किसको फेंकोगे जबरदस्ती भाई? कहा कुरान डालो, कुरान डाला, हजरत यूनुस के नाम निकला। फिर डालो, फिर उन्हीं का नाम, फिर डालो, फिर उन्हीं का। कहा इसी को फेंको, ये इसने जरूर कुछ ना कुछ किया, इसी के नाम क्यों निकल रहा है? और निकालने वाला कौन था? अल्लाह था। निकला, यूनुस को फेंका गया, मछली साथ साथ थी, अपने मुंह में रख ली। अल्लाह
3 पर्दे, रात की तारीकियां, पानी की तारीकी और उस मछली के पेट की तारीकी, 3 पर्दों। बताओ कोई सहारा था यूनुस का? उस समंदर की गहराइयों में उनको कोई याद करने वाला? उनकी कौम से तो रूठ के भागे थे वो। बस्ती, कोई अजीज, कोई अकारिब, कौन था जिसको यूनुस ने मछली के पेट में 3 तारीकियों के पर्दों में वो आवाज दी? क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह अकबर। आप गौर करें मुसलमानों, बहुत अजीम बात है जब तुम्हारे सारे रिश्ते कट जाएं, सारे सहारे मुनक़ते हो जाएं, तुम्हारा कोई न रहे। जब भी एक मोमिन ये यकीन रखता है कि उसका एक सिलसिला बाकी है और वो सिलसिला सब सिलसिलों से अफजल और आला है, और वो सिलसिला अल्लाह अज़्ज़ व जल का है। जो काली रात में काले पहाड़ के नीचे चलने वाली काली चूंटी की उस आहट, उसकी आवाज को भी 7 आसमानों के ऊपर मुस्तवी वो रब सुन रहा होता है। ये मोमिन का ये तुम्हें हौसला मिलता है। हौसला मिलता है कि नहीं मिलता? ये हौसला मिलता है तुम्हें। हजरत यूनुस का ये हौसला इस आजमाइश में मुब्तला किए गए, वहां 3 पर्दों में अल्लाह तबारक तआला को आवाज दी। अल्लाह ने क्या कहा? उस मछली को हुक्म दिया। मछली 50 दिन के बाद, कितने? अल्लाह, 50 दिन के बाद लाके साहिल के ऊपर उनको छोड़ा, जिंदा सलामत। अल्लाह अकबर। मछली किसकी ताबेदार है? हमारी तुम्हारी ताबेदार है? अल्लाह की ताबेदार है। अल्लाह। आग किसकी ताबेदार है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम को आजमाया, कहां कहां आजमाया? आग के अंदर मिंजनीक पर बिठाकर, और जिब्रील आए, कहा जिब्रील ने कहा इब्राहिम बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, हुक्म दो, पल भर में, लम्हे झपकते हुए हम तुम्हें यहां से दूर पहुंचा देंगे। इब्राहिम ने कहा तुम्हारी ताकत और कुव्वत मंजूर है, तुम जिब्रील हो, सब कुछ हो, लेकिन मेरा भी ईमान वो मुझे आजमाता है। आज मैं उसे देखूंगा, आज मैं उसके भी वादे देखूंगा। वो कहता है ना कि जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। आज मैं देखूंगा कि आज तो मेरा कोई नहीं है। अल्लाह, कौन है उसका? तने तनहा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, तने तनहा वो एक उम्मत था, उसका बाप भी उसका नहीं हुआ। पत्थर कहा तू अपने इस अकीदे से बाहर आ जा, वरना तुझे हम पत्थरों से मार के हलाक कर देंगे। हैं? सारी कौम तमाशा देखने के लिए तने तनहा इब्राहिम रस्सियों से जकड़े हुए मंजनीक के ऊपर बैठे हुए। कौन है सहारा? बताओ कौन है मुसलमानों? कौन है तुम्हारा सहारा? उसका सहारा कौन था? जिब्रील आ रहा है सहारे के लिए। अल्लाह नबी कह रहा वो आजमाने के लिए मुझे भेज रहा है। आज मैं उसको देखूंगा कि वो क्या करता है। कहा तेरे सहारे की जरूरत नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आज मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। और क्या हुआ? जब ये मुजाहरा देखा ईमान का, यकीन का, सब्र का और यकीन का, रब्बे जुल जलाल ने कहा आ रहा है मेरा बंदा। आग को हुक्म दिया या ना रुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, आ रहा है मेरा महबूब बंदा, जलाना नहीं। वो कुव्वत और ताकत जो तेरे जलने की है छीन। ये तुम्हें ईमान देते हैं, ये आयतें, ये वाक़यात तुम्हें यकीन देते हैं कि कोई तलवार, कोई बम, कोई टैंक, कोई चीज तुम्हें नहीं खत्म कर सकती है अगर तुम रब के ऊपर पुख्ता यकीन रखो तो। इंशाअल्लाह तबारक तआला दुनिया की पूरी ताकत मिल जाए तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें खत्म नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा रब तुम्हें ना चाहे। मुसलमानों, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हौसले की बात है। दुनिया के अंदर ये हौसला देने वाली चीज मौजूद नहीं है, इसलिए लोग कुरान के दुश्मन बने हुए हैं कि कुरान इनसे छीन लो। ये सबसे बड़ी दावत इनकलाब है, ये सबसे बड़ी दावत तशजीह है, हौसला अफजाई की दावत है। इसे छीन लो, खलास कर दो, ये मिट जाएगी, ये कौम खत्म हो जाएगी। और आज नतीजा वही हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यह आजमाइश है, यह आजमाइश है अल्लाह ताला। और वो भी आजमाइश, वो भी और बेटा भी, बाप भी, अपने हाथ से छुरी भी तू ले, रस्सी भी ले और जा खुद अपने बेटे को कह, चल बेटे को मशवरा कर। और बेटा भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो भी क्या कह रहा है मालूम है? जब कहा कि बेटे इन्नी अरा अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, ख्वाब में देखा है मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबह कर रहा हूँ, बेटे तेरी क्या राह है? कहा या अबत इफ़अल मा तुअमर, या अबत, अदब देख, अदब। अब्बा जान जो करना है कर गुजरिए, जो करना है, जो रब ने हुक्म दिया है कर गुजर। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, यहाँ देखें तौहीद, तौहीद देखें, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं। और वो इस आसमान ने, इस सूरज ने न जाने किन आंखों से वो नज़ारे भी देखे कि बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बाप ने बेटे की गर्दन पर, 90 बरस का बाप, 70 बरस का, अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दिया।
ये मंजर कभी आजमाइश का तुमने देखा है कभी? तुम्हें तो चंद चीज़ों में आजमाया जाता है, तुम बिलबिला उठते हो। मुसलमानों, बिलबिलाओ मत, अपने 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 आमाल की तरफ देखो। अल्लाह किस तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया, वो मकाम कि अल्लाह अकबर, अपने आखिरी नबी को भेजा और कहा उसी इब्राहीम के मिल्लत की तुम्हें भी पैरवी करनी है और क़यामत तक जितने आने वाले हैं सबको उन्हीं की पैरवी। एक नहीं, सैकड़ों नमूने हैं। उस माँ को याद करो, जब मैं क्या बताऊं, असहाबे हुदूद सड़कों के इर्द गिर्द जब खींचे गए, क्या खंदकें खोदी गई, आग लगाई गई, और मोमिनों मुआहिदों के लिए जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले, कहा बादशाह ने हमें रब नहीं मानते, जो हमें रब ना माने उन्हें इस अंगार में ढकेल दो। वो तो इब्राहीम थे, नबी थे। तुम कह सकते हो कि नबी की हिफाजत अल्लाह ने की है। ये मुआहिदीन को देखो, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इसको बयान फरमाया है कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के, दूध पीते बच्चे को, जब वो उस आग के पास गई और उससे कहा गया या तो हमें रब मान ले, नहीं तो तुझे इस आग में ढकेल देंगे। औरत झिझकी उस आग में कि मैं अपने बच्चे को लेके कैसे मरूंगी। बच्चा दूध पीता हुआ बेजुबान बोल पड़ा, अम्मा डर मत, ये जन्नत है, कूद जा, ये आग नहीं, ये जन्नत है, गुल्ले गुलजार है। माँ छलांग लगा दी बच्चे को लेकर के। ये आजमाइशें मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों, ये दौर आजमाइशों का जो तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह की कसम तुम मिट नहीं सकते, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हें मिटाने वाले मिट जाएंगे खुद, बशर्ते कि तुम खुद बन जाओ। तुम अपने ईमान को, अपने अकीदे, अपने अमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह ज़माना तुम्हारे चापों का इंतजार कर रहा है। ज़माने के मसीहा हो तुम, और ज़माना तुम्हारे इंतजार में है कि इन गुलामी की जंजीरों को काटने वाले मुसलमान कब अमली जामा पहन करके और कुरान और सुन्नत का जो है अमली तस्वीर बन करके हमारे सामने आएंगे, और कब हमें इन गुलामियों से निजात देंगे। तुम हो मुसलमानों, ए बर्रे सगीर के लोगों, ए मेरी आवाज़ सुनने वालों, ए समझने वालों, उठो, बेदार हो जाओ। बादिया तुंदे मुखालिफ से न घबराए वक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये गर्द गुबार झाड़ने के लिए। जिस तरह तुम रातों को बिस्तरे झाड़ते हो, ये जो थपकियां, ये जो मार, ये जो पीट, ये जो है, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम सही राहों पे आ जाओ। तुम क्या हो जाओ? सही राहों पे आ जाओ। छोड़ दो कुफ्र की दोस्ती, छोड़ दो काफिर और बातिल परस्तों का पीछा, छोड़ दो इन तमाम सब चीज़ों को और अपने अल्लाह को अपना लो, अपने रसूल को अपना लो। इंशाअल्लाह दुनिया के इज्जत तरीन लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और पाक परवरदिगार हर इब्तिला और हर आजमाइश में हमें इस्तिकामत अता फरमाए और जुर्रत और शुजाअत और बहादुरी के साथ इस दुनिया के अंदर जीना और रहना और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ल्लाहु खैरन शेखना सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अभी तक हम लोग आपकी पुरमग़ज़ बातें सुन रहे थे और इस इब्तिला व आज़माइश के दौर में अपने ईमान और अपने इस्लाम की हिफाजत किस तरह करें और इनसे किस तरह हम निपटें, ये तमाम बातें हम सुन रहे थे। अब इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा, अगर हमारे दोस्त बिरादर गिरामी मौलवी मुजीबुल्लाह साहब मौजूद हों तो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, और मैं शेख अब्दुस्सलाम साहब अर्रहमानी से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तफ़द्दल मशकूरा। अच्छे से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने सूरह फातिहा का तर्जमा जो नज़म में किया गया है वह पढ़ना चाहता हूँ। बहरहाल कुछ कहने से पहले सिर्फ़ एक शेर कि वो दिन गए जबकि पसीना गुलाब था, वह दिन गए जबकि पसीना गुलाब था, अब अत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। मतलब वक्त वक्त की बात होती है पढ़ने की। बहरहाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सभी खूबी सभी तारीफ है
اللہ کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، اور بزرگی ہے اسی آقا علی جہاں کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، اور برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، اور صدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ، صدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ۔ سنیے گا اس کو کہ وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، اور کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، اور خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، اور تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری، کہ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، اور جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، اور نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر، نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر،
تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، اور نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، اور ملما کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا۔ السلام علیکم۔ حضرات، شیخ عبدالسلام کسی اہم کوئی دوسرا پروگرام لے کر آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں، ہم قاری عبدالمتین صاحب سے ان کے خوبصورت سے آواز میں قرآن کریم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو اچھی آواز میں قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ سامعین کو اللہ کے کلام سے محظوظ فرمائیں، کم از کم جب تک وار ہیں تلاوت سنتے ہیں ہم۔ اللہ جزائے۔